Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to study about combustion part 2. In this part we are going to study about types of combustion, what happens when there is incomplete combustion, flame and its different zones, fuel and the calorific value, characteristics of good fuel and harmful effects of fuels. So let us learn about types of combustion 1. When a substance burns slowly and in the insufficient supply of oxygen, we call that slow combustion. For example, burning of solid fuels like cow dung cakes, wood, etc. They all burn, but they burn slowly and they come under slow combustion. Second is rapid, or we may say as fast. The substance burns fast and it gets complete supply of oxygen. So mostly liquid and gaseous fuels burn fast. They come under rapid combustion. थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप ही. व्हेन द सब्सटेंस कैचेस फायर इवन एट रूम टेम्परेचर. इन द अर्लियर वीडियो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इग्निशन टेम्परेचर, वी टॉक कि कुछ का इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है दैट इट कैचेस फायर easily at room temperature. अपने आप ही वो आग पकड़ जाता है जहाँ सराउंडिंग्स का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से राइज करता है. जैसे वाइट फॉस्फोरस, इट कैचेस फायर इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर मैक्सिमम इन समर्स. So similarly we have got sodium metal or white phosphorus. Sodium metal also catches fire when it comes in contact with the just air. में जैसे बाहर आता है at any temperature it may catches fire. So that comes under spontaneous combustion. And sometime the burning substance release a large amount of heat as well as light and sound. So this type of combustion is known as explosive combustion. When any substance is burning and along that it is releasing large amount of heat and light and sound. So that is the example of explosive combustion, burning crackers. Clear? And what happens when there is incomplete combustion? अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की बात की थी कि जहाँ पर स्लो कंबस्शन हो रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं मिल पा रही है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग. सो इफ देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई तो फ्यूल डज नॉट बर्न कंप्लीटली, right? And it produces some of the harmful substances. The very first is the soot. What is soot? Whenever some fuel is burning, so some amount of the unburnt carbons, they are just released in the air. क्योंकि उनको complete supply नहीं मिल रही है तो कुछ कार्बन का हिस्सा उनमें unburnt रह जाता है and that is released in the air. That is called soot. और सूट जो है एक तो हमारा वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी है और सेकेंडली इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट. सो वेरी फर्स्ट थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन इज सूट. सूट क्या है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन द एयर. तो मैक्सिमम जब सॉलिड फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उनमें से बहुत सा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हमारा रिलीज हो जाता है. Second is they produce carbon monoxide. If a fuel is burning completely in air, it produces carbon dioxide and water. But if there is insufficient supply of oxygen and fuel is not burning completely, then it produces carbon monoxide. And carbon monoxide is a very poisonous gas. When it is inhaled, it mixes with the blood and it forms carboxyhemoglobin compound. We all know that hemoglobin carry oxygen to our body cells. But when we inhale this gas, then this combines with the hemoglobin in place of oxygen
and to our body cells oxygen is not supplied. So due to lack of oxygen, our cells start dying. And that is why we sometimes say that carbon monoxide gas is poisonous, or it may be fatal. Fatal is causing death. So that is harmful for our living. Now, we have seen that fuels are burning and giving flame. जब हमारे फ्यूल जल रहे हैं तो उनमें हम एक फ्लेम ऑब्जर्व करते हैं. Now, what is this flame? The flame may be defined as a region over which gases burn. उस फ्यूल का जितना गैशियस कंपोनेंट है वो जहाँ जल रहा है और वहाँ ही हमें दिखाई देती है फ्लेम. फॉर एग्जाम्पल, when we burn a piece of paper or we burn a wax candle, we can observe this flame very well. Right? Now, if we observe the flame carefully, अगर हम इस फ्लेम को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लेम में आप डिफरेंट जोन्स ऑब्जर्व करते हैं. द वेरी फर्स्ट जोन वी ऑब्जर्व इन द फ्लेम इज अ जोन इनरमोस्ट. ये जो हमें नजर आ रहा है, इट इज द डार्कर जोन. ये ब्लैक डॉट की तरह नजर आ रहा है. इट इज द इनरमोस्ट जोन एंड दिस इज द जोन वेयर नो कंबशन ऑफ फ्यूल इज टेकिंग प्लेस. मतलब एक्चुअली में कैंडल में फ्लेम आती कहाँ से है? हम कहेंगे कैंडल तो सॉलिड है. ओके, वैक्स इज अ सॉलिड फॉर्म, बट हम जैसे ही उसकी विक को लाइट करते हैं, हम उस छोटे से थ्रेड होता है ना कैंडल में, हम उसको जलाते हैं तो उससे जो उसके कांटेक्ट में नीचे वैक्स सॉलिड है दैट स्टार्ट मेल्टिंग. ओके, और वो वहां से गर्म होके चेंजेस टू वेपर्स, वैक्स वेपर बनते हैं और वेपर्स जलते हैं तो हम फ्लेम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ गैसियस स्टेट. राइट? नाउ द इनरमोस्ट जोन इज दैट जोन वेयर वेपर्स ऑफ वैक्स आर नॉट burning at all. So this is a zone of complete darkness. ये इसीलिए डार्क जोन नजर आ रहा है हमें. यहाँ पर हमें वैक्स वेपर जलते दिखाई नहीं देंगे. राइट? एंड दिस इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्योंकि वहाँ कंबशन ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर विल बी लो. द सेकेंड जोन इज द मिडल जोन. मिडल जोन इज शोन बाय द येलो कलर हियर. This middle zone is a zone of incomplete combustion. Means अभी हमने पीछे बात की, उसका combustion तो फ्यूल का हो रहा है बट वो incomplete है. तो incomplete या partial combustion zone है, और इस जोन में जो फ्यूल है वो completely बर्न नहीं हो रहा और इसीलिए अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स वहां पर बिना जले रह जाते हैं, जो इसको येलो और सूटी फ्लेम देते हैं. राइट? सूट निकलता है वहां पर. तो ये वाला जो जोन होगा हमारा, इट विल बी मॉडरेटली हॉट. कोल्डेस्ट नीचे वाला जोन था, इसमें टेम्परेचर उससे थोड़ा हायर होगा बट नॉट एज मच हायर एज द अदर जोन. राइट? द थर्ड इज द आउटर मोस्ट जोन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरेंज कलर, एंड आउटर मोस्ट जोन इज अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. यहाँ पर फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो रहा है, और कंप्लीटली जब फ्यूल बर्न होता है, मैंने अभी कहा था, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और जहां ऑब्वियसली कंप्लीट हमारा फ्यूल बर्न कर रहा है, दैट विल बी द हॉटेस्ट जोन. तो द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द जोन इज द हॉटेस्ट जोन, मिडल जोन इज मॉडरेटली हॉट एंड लीस्ट हॉट जोन इज द इनर मोस्ट डार्क जोन. और हमें जो है इनका एक शाइनिंग पार्ट नजर आता है जो ग्लोसी फॉर्म में नजर आएगा हमें इसकी. तो जो आउटर मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट है वो नॉन ल्यूमिनस जोन रहेगा. हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. एक्चुअली इट इज वेरी लाइट ब्लू इन कलर बट वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट. द मैक्सिमम पार्ट व्हाट वी ऑब्जर्व ऑफ द फ्लेम इज द ल्यूमिनस जोन एंड दैट इज मिडल जोन. राइट? हमें वो दिखाई देता है. तो दीज आर डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल. यू नीड टू रिमेंबर एंड यू शुड नो द ड्रॉइंग ऑफ डायग्राम्स एज वेल. राइट? We have learnt that fuel is a substance that burn in oxygen to produce heat. So fuel हम क्यों चला रहे हैं? Why do we need fuels? We need fuels to produce heat energy.
सो हमारा कोई भी फ्यूल कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है, उसका 1 kg अगर हम बर्न कर रहे हैं प्योर ऑक्सीजन में, तो उसको हम कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 kg फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन is defined as the calorific value of that particular fuel. एक फ्यूल जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो अच्छा और बेटर फ्यूल कहलाएगा. तो वी हैव गॉट वेराइटी ऑफ फ्यूल्स, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा, बट इनमें से सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला फ्यूल्स ही हमारे बेटर फ्यूल की कैटेगरी में आएगा. सो द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू को अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा हीट निकल रही है उससे बर्न करने से. सो बेटर इज द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल. तो एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज डिसाइड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू, right? Higher the calorific value, more is the efficiency of that particular fuel. And calorific value is expressed in terms of kilojoules per kg. Yani this is the unit for measuring calorific value. तो किसी फ्यूल से कितनी हीट एनर्जी निकल रही है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में एक्सप्रेस करेंगे. और कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है डिवाइडेड बाय कितना हमने फ्यूल बर्न किया, देन वी कैन कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल. राइट. नाउ just now we have talked that we have got variety of fuels, but which fuel is characterized as a good or a better fuel? Some of the factors decide the better or good fuel. One, it should be cheap and readily available. हमारे लिए वो अवेलेबिलिटी उसकी अच्छे से हो, इजीली हो अवेलेबल, और हमें उसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा ना स्पेंड करना पड़े. So it should be cheap, cost friendly we can say, easy to store and transport, उसको store करना, transport करना आसान हो. Right. It should have the high calorific value. Just now we discussed कि amount of heat अगर हम उसको burn कर रहे हैं तो वो भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. By spending very small amount of fuel, we should be able to produce large amount of heat. Then we say that it has high calorific value. Then it should be environment friendly. It should not produce any waste material left after burning, or it should not produce harmful gases which pollute the environment. So it should be environment or bio-friendly. Then it should have low ignition temperature. हमने ignition temperature को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसे बर्न करना पड़ता है, पहले हमें जलाना पड़ता है, तब वो खुद बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करता है. एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर. सो जितना इग्निशन टेम्परेचर लो होगा हमारा फ्यूल उतना ही बेटर होगा. क्यों? अब आप देखिए गैस फ्यूल्स हम लाइट करते हैं, हल्का सा लाइटर से एक स्पार्क उसको जला देता है, जबकि वुड और कोल को जलाने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं. सो हम इन दोनों में से गैशियस फ्यूल को ही बेटर फ्यूल कहेंगे बिकॉज उसका लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इट कैचेस फायर इजिली. सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिसाइड अ बेटर और अ गुड फ्यूल. राइट. नाउ अगर हम इन फैक्टर्स पे जाएं तो हम सबसे अच्छा फ्यूल अपना कैटेगराइज करते हैं गैशियस फ्यूल्स को, क्योंकि गैशियस फ्यूल में ये सारे एक अच्छे फ्यूल के कैरेक्टर्स हैं और इसको हम आइडियल फ्यूल भी कहते हैं. ये वो आपको पता है, हमने बोला था इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, तो इसको हमें कितना आसान है सिलेंडर से सप्लाई करना, है ना. एक हमारे सिलेंडर में अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 kg के आसपास गैस फिल करके हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आसानी से. राइट. और इन मैनी कंट्रीज इट इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स, इसको हम PNG भी कहते हैं, वेयर इट इज पाइप्ड नेचुरल गैस. राइट. इट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑल्सो. हमारा जब गैशियस फ्यूल बर्न करता है तो बहुत कम अमाउंट ऑफ स्पेंड करके गैस को हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू. थर्ड, इट डज नॉट लीव एनी ऐश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग. कुछ भी जलने के बाद इनके पीछे, आपने देखा है आपके किचन में गैस जलती है तो पीछे कुछ ऐश वगैरह कुछ निकलता है? नो. एनी स्मोक? नो. सो
it is environment friendly. It produces very low emission of harmful gases. And lastly, it has low ignition temperature. It can be easily burnt just by using a spark. हम लाइटर से एक स्पार्किंग देते हैं और इसको कैच कर लेता है फायर. सो जितने हमने आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे वो सारे हमारे किस में अवेलेबल हैं? गैशियस फ्यूल में. इट इज़ अ क्लीन फ्लेम. ना हमारे बर्तन खराब होते हैं, ना हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है. तो वी शुड यूज मैक्सिमम ऑफ गैशियस फ्यूल्स. राइट. अब क्या है हमारे पास? गैशियस फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रीज में है मैक्सिमम यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल लाइक कोल इज यूटिलाइज्ड. और इससे हमारा क्या है? जो बाकी भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं कहीं पेट्रोल डीजल की फॉर्म में, तो दे आर अल्टीमेटली बर्निंग टू प्रोड्यूस कोई कम कोई ज़्यादा सम अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड. राइट. तो हमारे फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो उनसे बहुत हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सूट विच इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, स्मोक, ash particles etc. are produced by burning fuels which keep on suspending in the air. और आपने देखा है कि विंटर में यही वो हमारे स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. ऐसा आपने सीन देखा होगा ना. द विजिबिलिटी इज वेरी पुअर और हमारे को जो है काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है इधर से उधर आना जाना भी मॉर्निंग में. सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन. Right. Second is incomplete combustion, that releases carbon monoxide. We have already discussed it is very poisonous gas. Third, it releases carbon dioxide, and we have learned it about in the junior classes also that it causes the heat rays of the sun to trap, which is known as greenhouse effect. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती है और इसकी वजह से क्या होगा कि दैट एब्जॉर्ब्स द सन्स हीट रेज जो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है. तो उसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. देन आई जस्ट टॉक दैट हमारा मोस्टली कोल इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होता है. तो कोल में सल्फर बर्न होती है ऑक्सीजन में, दैट इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, and that sulfur dioxide go in the air combine with moisture and oxygen and produce sulfuric acid. इसी तरीके से हमारा पेट्रोल में जो बर्न होते हैं उनमें से बहुत सा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं which also go in the air combined with water vapor and oxygen, they form nitric acid. So all these acids they dissolve in the rain and fall down, known as acid rain. So acid rain is one of the harmful effects of fossil fuels burning. Then on human health की बात करें, they have many harmful effects also. Certain types of breathing problem and respiratory diseases are associated with fossil fuels. That is bronchitis, asthma. तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज भी कहीं स्मोकी एरिया में हम खड़े हों तो वी फील वेरी ब्रेथलेसनेस. हमें सफोकेशन फील होती है इवन इन ओपन बिकॉज दैट मेक्स अस डिफिकल्ट टू ब्रीथ. सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कैटेगराइज एज स्मोक, राइट, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड मेनी health diseases. So with this our chapter is over. Now you please go through the previous portion also, and if you like this kindly share and subscribe.